Hi everybody, welcome to CUT Pro. This is Tushar, founder of CUT Pro and an SRCC alum. And Christ University is back with a bang. इस साल उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है. And in this video, I'll be talking to you and will be walking you through क्या प्रोसेस चेंज हुआ है, क्या डेट्स चेंज हुई है और क्या अब प्रोसेस है, एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है. So first of all, छोटा सा ब्रीफ देता हूँ. What is Christ University? Christ University is a very well-known university based in Bangalore. काफी सारे उनके कैंपसेस हैं. बैंगलोर में कैंपसेस है, दिल्ली में कैंपसेस हैं और लवासना पुणे में कैंपसेस हैं. काफी वेल नोन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है. बीबीएस और उनके जो बीकॉम्स है काफी पॉपुलर कोर्सेज हैं. ह्यूमैनिटीज में भी काफी सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं इनके पास एंड बहुत सारे बच्चों की प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है. एज अ प्राइवेट कॉलेज इट हैज अ प्रीटी गुड ब्रांड. सो अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और यू वांट टू गेट इनटू एनी गुड कॉलेज, you should definitely apply to Christ as a university. In this video, I'll be walking you through all the different processes. So let's get into it. So most important thing which is there are the dates. So what used to happen in Christ is that they used to open the forms by December. January तक आराम से फॉर्म खुलते थे. उनका जो एग्जाम होता था अप्रैल और मई में होता था, बट इस साल उन्होंने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया. What has happened is कि they have for the first time ever they have opened the forms on 30th of October 2025. उनका जो they have opened the form on 30th of October 2025. उनका जो फॉर्म क्लोज होगा that will be closing on 1st of December 2025. So please don't keep on sleeping. ये मत सोचना बाद में हम भर देंगे फॉर्म. अभी फॉर्म भर दो. 1st of December तक तुम्हारे पास टाइम है. 1st of December के बाद जो important date है that is 7th of December. That is when the exam would happen. This year they have moved the exam online. You would see that the exam has been moved to online and application online. So exam has been moved online. You'll have to sit for that exam. It is an exam. I'll come to what is the format of the exam. But 7 तारीख को वो exam होगा. आप अपने घर से दे सकते हो. You don't have to go to an offline center to give that exam. And once you have appeared for your exam on 7th of December, your next important date is 13th and 14th of December. 13th और 14th ऑफ दिसंबर को उनके ऑफलाइन सेंटर्स पे जो ये पूरी लिस्ट है, इन सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आपका स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और फिजिकल इंटरव्यू लिया जाएगा. सो ऑल ऑफ यू मैंडेटरली जो भी एग्जाम देगा उनको इस राउंड में अपीयर करना ही पड़ेगा. ये सिलेक्टिव राउंड नहीं है. जो भी बच्चा एग्जाम देगा सबको जाना पड़ेगा ऑफलाइन टू दीज सेंटर्स टू गिव ऑल दीज 3 levels of exam. And this would be happening on 13th and 14th of December. And finally, by 18th of December, they'll be coming out with the results. So, process has become very crisp और process बहुत जल्दी हो रहा है. 1st of December को form closed, 7 दिसंबर को तुम्हारा exam, 13 और 14 दिसंबर को तुम्हारा assessment and 18 December is when your result is coming out. So, keep note of all these important dates. Now, what is going to be happening next is क्या-क्या course Christ University offer करती है. Good part is that university has a lot of different courses. So very good courses in BBAs, BComs and BAs. If you'll go to the website, you have to go to Christ University, our programs, and there would be a long list of courses that would be available. इसमें से आप select कर सकते हो आपका क्या program name है, which campus are you looking that program in. Apply का बटन है यहाँ पे. Eligibility का you can look at what is the eligibility, what are the requirements in class 12. आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको 12th में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको एंट्रेंस टेस्ट कौन सा देना पड़ेगा, एंड देन फीस एंड ऑल द अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर. नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू इट. एंड व्हाट यू वुड सी इज कॉमर्स में यू हैव ऑल दीज कोर्सेज इन बीकॉम्स एंड बीबीएस. देयर आर लॉट ऑफ बीबीएस आल्सो. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक आउट द लिस्ट ऑफ ऑल बीबीए कोर्सेज व्हिच आर देयर एंड these are all the BA courses which are there. So BA in journalism, BA in English, BA in economics, BA in communication and a lot of other BAs are available as well. So go to the website, check everything in detail for more clarity. Now one of the other important questions जो बच्चे regularly पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे जो campuses हैं, बैंगलोर के जो campuses हैं, दिल्ली के जो campuses हैं, पुणे के जो campuses हैं, कौन से campus में apply करें. क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा. प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3. आप उसमें कोर्स और अपने कैंपस का प्रेफरेंस डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको बीबीए फिनटेक करना है इन पुणे कैंपस तो आप लिख सकते हो बीबीए फिनटेक पुणे कैंपस, बीबीए फिनटेक बनरघट्टा कैंपस, बीबीए फिनटेक
इन दिल्ली एनसीआर कैंपस। सो ऐसे कोर्स अलग अलग डाल सकते हो, सिमिलरली कैंपसेस भी आप अलग अलग डाल सकते हो। सो इसलिए बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं कौन सा कैंपस चूज करूं, मैं बैंगलोर कैंपस चूज करूं, दिल्ली कैंपस चूज करूं या पुणे कैंपस चूज करूं। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ कैंपसेस व्हिच आर देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि बैंगलोर में कौन से कैंपस में पिक करूं। The best one is the central campus, one of the oldest campus, one of the primary campus जहां से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी चलती है. So you should definitely fill the central campus. Second option you should give to Bannerghatta campus. And third, आप यशवंतपुरा कैंपस या केंगरी कैंपस किसी को भी दे सकते हो. तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और इन तीनों में से आप कोई भी थर्ड दे सकते हो. फोर्थ में आप पुणे कैंपस डाल सकते हो, और फिफ्थ प्रेफरेंस यू शुड गिव टू दिल्ली कैंपस. दिल्ली कैंपस इज अ रिलेटिवली न्यू कैंपस. That is why I would not recommend कि आप दिल्ली कैंपस को हाई प्रायोरिटी में डालो. पुट इट इन लो प्रायोरिटी. बैंगलोर कैंपस को आप सबको हाई प्रायोरिटी में डालो. एंड व्हाट आई आल्सो रेकमेंड स्टूडेंट्स, डोंट बी वेरी रिजिड कि यार मुझे तो सेंट्रल कैंपस में ही जाना है. ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेंट्रल कैंपस में ही बेस्ट रिसोर्सेज है. बैंगलोर में से आप कोई भी कैंपस उठा लो, ऑल ऑफ द कैंपसेस आर प्रिटी गुड. तो अगर आप सेंट्रल भी जा रहे हो, बैनरघट्टा भी जा रहे हो, आपको सब कैंपसेस का एक्सपोजर मिल जाएगा. आप दूसरे कैंपसेस में जाके भी एक्सपोजर ले सकते हो, उनके कंपटीशन में जा सकते हो, उनके इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो. सो डोंट बी वेरी रिजिड, बी चिल विद द कैंपस, बट एज आई सेड, focus on trying to get into a good campus in Bangalore. That should be your focus. Now, applications, as I said, are open on christuniversity.in. So you can go to christuniversity.in to apply. What are the documents which are required? You need to have your class 10th mark sheet, have your class 11th mark sheet, class 12th mark sheet if you are a dropper. अगर आप currently class 12th में पढ़ रहे हो, you just have to focus on your class 11th mark sheet. You have to have a passport size photograph. आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी, वहां पे साइज होगा फोटोग्राफ का, किस साइज की फोटोग्राफ अपलोड करनी है. यू कैन चेक द साइज एंड यू कैन अपलोड द फोटोग्राफ. एंड आपको एक वैलिड आईडी भी चाहिए, विच कुड बी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर आईडी. व्हाट आई आल्सो वांट टू फोकस ऑन 10th में और 11th में या फिर 12th में, आपकी मार्कशीट जो होगी उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आपको सबके मार्क्स डालने हैं. इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स इन योर मार्कशीट, डोंट अज्यूम कि बेस्ट ऑफ 5 के डालने हैं. बेस्ट ऑफ 5 के नहीं डालने हैं. जो भी 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं. तो टोटल मार्क्स में जो 6 सब्जेक्ट्स का टोटल है वो आएगा, और ऑब्टेन मार्क्स में जो उन 6 सब्जेक्ट्स का ऑब्टेन टोटल है वो आएगा. डोंट कंसीडर बेस्ट ऑफ 5 बोथ इन क्लास 11th, 12th और 12th एंड इन क्लास 10th. हाँ, मूविंग ऑन टू सिलेक्शन प्रोसेस. सो क्राइस्ट इज नॉट दैट इजी कि तुम बस एक एंट्रेंस टेस्ट दो या फिर तुम एक सिर्फ इंटरव्यू दो, उससे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. एक एंट्रेंस टेस्ट भी दो, फिर उसके बाद तुम्हें आगे जाके और भी प्रोसेस करना पड़ेगा. एंड जो एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, दैट इज नॉट अ सिंपल एंट्रेंस टेस्ट. उसमें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जीएटी भी पढ़नी पड़ेगी, जीटी भी जीके भी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ कुछ कोर्सेज में आपको अपने पर्टिकुलर कोर्स का कुछ करिकुलम पढ़ना पड़ेगा 12th से भी. So that is a criteria, that is a PDF that we have linked in the description. You can download the entire structure of the paper कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आएंगे from the description. And description में हमने एक कंपेंडियम भी बनाया है, गूगल शीट बनाई है, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट इन क्राइस फॉर्मेट वो आप अवेल कर सकते हो. सारा सिलेबस देख सकते हो, सारे फॉर्मेट्स देख सकते हो, और सारे कोर्सेज जो जो अवेलेबल है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यू कैन टेक दैट गूगल शीट एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा. एंट्रेंस टेस्ट 120 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर. सो 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स का होगा, एंड सॉल्विंग के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे. आफ्टर योर एंट्रेंस टेस्ट इज डन, दिस इज एन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट. यू डोंट हैव टू गो टू अ सेंटर, इट विल बी हैपनिंग ऑन योर ओन स्क्रीन एट योर ओन कंप्यूटर एट योर होम. उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड स्किल असेसमेंट. माइक्रो प्रेजेंटेशन इज लाइक एन एक्सटेम्परी, जहां पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको कम से कम 90 से 120 सेकंड के लिए बोलना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिपेयर्ड फॉर थिंकिंग ऑन द फीट. वो बोलेंगे कि आप बोलो रेड, रेड पे बोलो, रेड इज योर टॉपिक. दे वुड से दैट फीमेल इन्फेंटिसाइड इज योर टॉपिक. आपको 90 सेकंड के लिए तुरंत बोलना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट वुड हैपन इन माइक्रो प्रेजेंटेशन. Personal interview में they would be interviewing you. We would be making a separate video of how to crack micro presentation, how to crack personal interviews. So keep connected with the channel, and in the coming days we would be posting a separate video on personal interview which we can refer to.
थर्ड पार्ट में वो होगा आपका स्किल असेसमेंट. Skill assessment में they would be giving you a short test. They would be asking you to write on some topics. So you have to just prepare a couple of those topics. As I said, we are coming up with more videos ताकि आप उसके लिए prepare कर सको. So this is what you have to do in the selection process. हाँ, entrance test का format क्या है? One of the most difficult things which are there, and the बैड पार्ट है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको बताया गया है. आपका टेस्ट है 7 तारीख को, 7th दिसंबर को, एंड 30th अक्टूबर को उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिलीज करी है कि इस साल एंट्रेंस टेस्ट मूव हो गया है. तो किड्स हैव अ वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर. सो माय स्ट्रेटजी वुड बी, प्लीज डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट वंस. ट्राई टू कवर जो भी तुम्हारे टॉपिक स्ट्रांग है उनकी प्रैक्टिस करो, उनको तुम फोकस करो, सब कुछ करने की कोशिश मत करो. अब क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? इंग्लिश. So basic English, including your reading comprehensions, your vocabulary and grammar are going to come. General knowledge is going to come, which would cover variety of things like Indian economy, world geography and awards. Then your reasoning is going to come. Reasoning में आपकी पूरी logical reasoning आएगी, जिसमें blood relations, directions, आपका upstream, downstream, all these topics are going to come, which are going to test your logical and analytical skills. And finally, आपका data analysis and interpretation आएगा, where they would give you a dump of data. उस डेटा से आपको काफी सारे कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे. सो ये 4 टॉपिक मोस्टली हर एक सेक्शन में आएंगे. देन डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी पूछा जाएगा, विच इज बेसिकली फ्रॉम क्लास 12. एंड अगर आप आर्ट्स कर रहे हो तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो और आपके क्या क्या टॉपिक, कौन सा आप कोर्स कर रहे हो, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. सो बी श्योर ऑफ दैट. नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर, 0.25 ऑफ नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर. अगर आप सही करोगे आपको 1 मार्क्स अवार्ड होगा. ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स एंड देयर वुड बी 120 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस which would be given to you. So this is the format of the entrance test which you are going to be getting for your CRISE entrance exam. So this is it for this particular video. We would be making a separate video on the entire process of how to fill the application form. So keep connected to the channel. And as I said, description में आपको जो resources हैं, आपके free mock test in CRISE format that is available. You don't have to pay anything. You just have to go on the platform and give it in the CRISE University format. जैसा CRISE में आपका टेस्ट होगा. Syllabus आपको दिया गया है. All the other resources are also given to you. So take advantage of that and please subscribe to the channel for more such videos.